factors को आप simultaneously पढ़ सकते हो along with the causes of the false negative autopsy. Sometimes in your exams they basically ask you about what is negative autopsy, what are its types, ठीक है? And कभी-कभी mention भी हो जाता है what is meant by the false negative autopsy. So false negative autopsy is the autopsy where the cause is there, but because of all these factors, ठीक है, the cause cannot be ascertained. That is false negative autopsy. And false negative autopsy is during performing the autopsy and after performing the autopsy. So first of all, as I told you, before commencing, you have to know about the history. ठीक है? इसमें very important thing is that, for example, if road traffic accident का case है और if there is a case of criminal abortion where we are using something to cause the abortion of a fetus, ठीक है? Or you know, air embolism is a very important thing which occurs because of that. If we are infusing something or we are just giving any surgical incisions over there और कुछ air internally चली जाती है, even IV fluid अगर आप ठीक से नहीं लगाते तो embolism हो सकता है. Similarly, in cases of the road traffic accident where the pneumothorax occur, ठीक है, what is there? Basically rupture आपका lung होता है, air आ जाती है lung और chest के बीच में in that cases. So if you do not have the history, you just open it by your incision. Which incision is going to open the body cavity? I-type तो कोई नहीं यूज करता normally. Y और modified Y, ठीक है? इनमें से आपने ओपन कर दिया फटाफट कैविटी को, उसके बाद आपने टर्शरी क्वार्टरली सारे के सारे इंसिजन दे के आपने लंग्स भी ओपन कर लिए. You have opened the heart and you lost all the fibers. That's why it is very important to know the history. And second thing which is very important before commencing the autopsy is to radiograph the whole body. You should have the radiograph of the body so that you can know that air is there or some foreign particle is there. For example, कई दफ़ा क्या होता है कि आपकी radiograph अगर खराब है, बहुत टाइम लग जाता है एक बुलेट ही ढूंढने में. sometimes कई दफ़ा बुलेट नॉर्मली आप स्पाइनल कॉर्ड वाली साइड नहीं खोलते because it is very difficult to stitch. और अगर आपको शुरू में चीज़ें कहीं से मिल जाती हो तो बैक से नहीं खोलते हो. But for that foreign bullet, most of the time your autopsy goes very much extended. That's why if you have the radiograph facility, तो आप बहुत आराम से locate कर सकते हो. And similarly, if radiograph is there, आपको आराम से pneumothorax और air embolism का idea हो जाता है. And because of that, you can very carefully do the specific measures जो आपको करनी चाहिए. Otherwise आप lost कर जाते हो. For example, ठीक है, you know about pneumothorax, ठीक है? This is a condition where basically pneumothorax occur. अच्छा, आपको खुद से माइंड में क्या आता है कि if we are going to perform an autopsy to establish the cause of the death as pneumothorax, तो आपको autopsy में क्या केयर करनी चाहिए? What should be your precautions in your mind? मैम, जो कैविटी है उसको आप पोक ना करो ताकि एयर सारी बाहर चली गई तो you won't identify, diagnosis नहीं होगा. So you make a pocket, fill it with water, and then you see the bubbles and then you. Very nice. ठीक है, आपको प्रॉपर्ली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बुक्स में समटाइम देयर इज रिटन अ ग्रेजुएटेड सिलेंडर और समथिंग लाइक दैट. तो ग्लास पानी के भरे हुए ग्लास को उल्टा करके रख दो, कुछ जगह से लिखा हुआ है. तो हाउ कैन यू डू दैट? भरे हुए पानी के ग्लास को उल्टा नहीं कर सकते. सो इट्स वेरी इजी एज शी टोल्ड कि वी बेसिकली डू दिस इज बेसिकली कि आपको पता होना चाहिए pneumothorax क्या है. फ्रंट ऑफ चेस्ट आपने लिया एरिया, यू लोकेटेड दैट एरिया, यू रिमूव द स्किन, you remove the muscles, ठीक है? आपने वहाँ पे एक पॉकेट बनाई and you put some amount of water over there and then आप intercostal spaces के बीच में prick करते हो छोटा सा, ठीक है? आप करते हो air comes out and you can observe the bubbles over there. Just a very small procedure and you can know कि okay this is a case of pneumothorax because हमने कहीं से air को leak नहीं होने दिया, हमने वहीं पे उस air को demonstrate किया. But नॉर्मली क्या होता है कि ये ना सिर्फ आपकी ऑटोप्सी के करने के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस एंड एयर एम्बोलिज्म व्हिच कम्स टाइम एंड अगेन इन योर एग्जाम्स and most of the time because in books it is written very loosely and many other things are written. You have to write, you have to tell only these 2 or 3 steps where you are taking a pocket, you are just exposing that area, you are filling it with the water and you are just piercing something in between the intercostal spaces and you feel the bubbles, you can see the bubbles and you establish that it is a pneumothorax. Okay, like this. Fill the pocket, puncture the intercostal
intercostal space, if air is present, bubbles will come out. Similarly, like this, you can see the bubbles. Similarly, here the air bubbles are there. If the air embolism is there. In case of air embolism also, the approach is slightly different, but the main idea is same. यहाँ पे भी आप क्या करते हो, एरिया एक्सपोज करते हो, हार्ट को एक्सपोज करते हो, देन पेरिकार्डियल कैविटी को वहाँ से ओपन किया, पेरिकार्डियम के एरिया के अंदर यू आर फिलिंग इट विद द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, और फिर आप राइट वेंट्रिकल को पंक्चर करोगे, ठीक है. व्हेन यू आर गोइंग टू पंक्चर द राइट वेंट्रिकल, यू कैन सी द बबल्स कमिंग आउट व्हिच शोज दैट ओके एयर एम्बोलिज्म इज प्रेजेंट. So these are very important topics from examination point of view. और वैसे भी आपको वाइवा में भी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है about this के how would you do that, ठीक है. You open the chest cavity, expose the heart, give a small neck in the pericardium, fill the pericardial cavity with the water, and then you puncture the right ventricle. आपको जब air नजर आएगी तो you can see के it is basically case of air embolism, ठीक है. So main thing is that the area where you are performing in pneumothorax area is different. Puncture area is different in case of this air embolism. Otherwise, the procedure is same in both cases. ठीक है, ये आपको by heart at the end of the lecture याद हो जाना चाहिए. You cannot find it in books. ठीक है, ये उस तरह नहीं लिखा होगा. This is the area जहाँ पे आपको नजर आ सकता है. Okay. So next the improper external examination. ठीक है, when you are missing something in the external examination. ठीक है, इट इज़ वेरी कैजुअल इफ़ यू आर डूइंग कैजुअली कि ओके OTs होते हैं या आपके साथ जो मोट्रिशियंस होते हैं, आप कहते हैं मैं ज़रा चाय भी क्या आता हूँ, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कहते हैं बॉडी खोलो और उसके बाद आई एम जस्ट कमिंग. सो बेसिकली दे आर वेरी ट्रेन्ड बट दे आर नॉट द डॉक्टर्स, दे डू नॉट हैव MBBS और समथिंग लाइक दैट इन डिग्री. दे कैन मिस द माइनर डिटेल्स. फॉर एग्जाम्पल ब्रूज की कलर चेंजेस हुई हुई हैं, ठीक है, या आपकी जो पोस्टमार्टम स्टेनिंग होती है, ठीक है, आप पढ़ोगे बाद में लाइवर मॉटिस है, ठीक है, और समथिंग लाइक दैट, बहुत माइनर सी चेंज है और वो नहीं वहाँ पे देखते. और उसके अलावा कोई स्टेनिंग है हल्की सी किसी भी तरह की, कोई एब्रेशन है, ठीक है, जो लीड कर सकती है इंटरनली, तो वो गया. लाइक इन आवर केसेस व्हेन आई वाज डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन मेयो हॉस्पिटल कैन एडवर्ड, देयर वाज अ केस वेयर अ स्कफल वाज बिटवीन टू पर्सन्स एंड देयर वाज अ small light bruise on the testes of the person who died. And during that we were basically somebody ignored that, जिन्होंने भी किया, open the body, does all the 3 rituals जो हम करते हैं वो सब कुछ किया, but कुछ भी नहीं पता चला. उसके बाद जब body close हो गई, सारी stitch होने लगी, तो जो भी HOD थे, sometime वो थोड़ा high profile case था, he came and just looked at the external surface of the body, just observed the small light bluish color, जो इतना था कि आपको नॉर्मल लाइट में उस तरह नजर भी नहीं आता. बट देन वन यू नो कि वेसोवेगल इनहिबिशन अकर्ड बिकॉज ऑफ दैट. एक छोटा सा पार्ट था, वहाँ पे ट्रिगर जोन था, ड्यूरिंग द फाइट वहाँ पे किक लगी एंड द पर्सन डाइड एट द स्पॉट. ठीक है, दैट कैन बी अ ट्रू ऑटोप्सी क्योंकि वो इतनी ग्रॉस फाइंडिंग नहीं थी, बट वो जो स्मॉल सी फाइंडिंग थी वो मिस हुई. और जो केस पूरा जो है वो कॉज ऑफ डेथ, कोई कहे पॉइजनिंग है, समबडी लाइक पहले से तो मसला चल रहा था या कुछ भी बंदा बीमार था, कुछ था ऐसा, तो वो हल्की सी फाइंडिंग भी अगर आपकी मिस होती है तो आपका नेगेटिव ऑटोप्सी में चला जाता है. ठीक है, लाइक इलेक्ट्रिक लीजन्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने पूरा देखना है. सब एंट्री और एग्जिट की लीजन्स होती हैं. ठीक है, एंट्री और एग्जिट की लीजन्स आप देखते हो तो इलेक्ट्रिकल लीजन्स आपको पता चलती हैं, और वो मिस हो गई तो इंटरनली मोस्ट ऑफ द टाइम कोई फाइंडिंग्स नहीं होती इन दैट. स्नेक बाइट के फैन मार्क्स हैं, किसी और बाइट के फैन मार्क्स हैं. ठीक है, वो अगर आपने मिस किए, मोस्टली तो स्नेक बाइट इंटरनली भी बहुत सी चेंजेस करता है, लेकिन इन सम केसेस इफ द डेथ इज वेरी रैपिड, इन दैट केसेस हुआ वेसोवेगल शॉक है, अभी ऑर्गेनिक चेंजेस नहीं हुई, बट वो हुआ क्यों है, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ द फ्राइड और समथिंग. लेकिन अगर आपने फैन मार्क्स मिक्स किए तो उसकी हिस्ट्री पे आप नहीं जा सके. ठीक है, और वो आपका नेगेटिव ऑटोप्सी हो गया. जी, ये जैसे वायर से लग गई, अभी आपको दिखाती हूँ. ठीक है, नीडल प्रिक्स आर एडिक्ट्स. सिमिलरली इन केस ऑफ इंफेक्टिसाइड, जहाँ बहुत छोटे बच्चे होते हैं, a phenomena is there which is known as pithing. Pithing में क्या होता है, बड़ों में भी हो सकते हैं कि very small concealed wound बन सकते हैं. नीडल लेके उसको वर्टिब्रा के बीच में से ये पीछे से ऐसे करके पास कर दो, स्पाइनल कॉर्ड डिस्ट्रॉशन हो जाती है एंड डेथ कैन बी देयर. ठीक है, इसी तरह
सर में भी कहीं पे भी, तो स्मॉल जो बेबीज होते हैं उनकी डेथ बहुत इजीली हो सकती है बिकॉज ऑफ दैट पिथिंग, ठीक है। तो दैट पिथिंग मार्क्स अगर आपने डिटेल से एक्सटर्नल एग्जामिनेशन नहीं किया तो आपको वो बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे और वो फिर वही फॉल आपकी नेगेटिव ऑटोप्सी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। दीज आर द इलेक्ट्रिक लीजन्स। इस तरह से आपको क्लोजली अच्छी तरह से देखने चाहिए, अदरवाइज सम टाइम अगर थोड़ा टाइम हो गया हो तो ये इलेक्ट्रिक लीजन्स ऑलमोस्ट वैनिश्ड हो रहे होते हैं। वाइट मार्क्स स्मॉल, ठीक है। फिर आगे आपका फॉल्टी इंटरनल एग्जामिनेशन, अगर नेग्लिजेंट ओपनिंग ऑफ द चेस्ट है, सिमिलर है हमारी फर्स्ट पॉइंट से भी कि जो हमने अभी नीमोथोरैक्स वगैरह में किया था, वहाँ पे भी हमारा इंटरनल एग्जामिनेशन ही था बेसिकली जो लॉस्ट हुआ था बिकॉज ऑफ आवर हिस्ट्री टेकिंग ठीक नहीं हुई थी, ठीक है। तो इसमें भी लॉस ऑफ एविडेंस हो जाता है, लाइक इन एराम्बुलिज्म एंड नीमोथोरैक्स आपने गलत एग्जामिनेशन किया और आपने पॉजिटिव फाइंडिंग्स को नेगेटिव कर दिया। Then failure in the histological examination where you are collecting the specimen, ठीक है। हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था crime disease detection का, where we have discussed about the thing कि how we are going to dispatch and collect all the viscera. So if at that point from the body you are not collecting the right specimen, ठीक है, you are collecting the right specimen but आप उसे सही से preserve नहीं कर रहे, या आपको for example आपने स्पेसिमेन लिया ठीक नहीं ली, जितनी क्वांटिटी चाहिए थी, फॉर एग्जाम्पल 5 ml ऑफ ब्लड आपने लिया है 10 चाहिए था, या आपने किडनी का वो हाफ ले लिया जो नहीं चाहिए था, तो इन दैट कंडीशन इट इज नोन एज अनअवेलेबल स्पेसिमेन। स्पेसिमेन इज देयर बट या तो वो खराब हो गया, या उसकी अमाउंट ठीक नहीं थी, या लेफ्ट में प्रॉब्लम थी, राइट ले लिया है, तो इट्स ऑफ नो यूज ऑफ द पर्सन हु इज डूइंग द एग्जामिनेशन, ईदर टॉक्सिकोलॉजिकल और द हिस्टोलॉजिकल। Secondly, you are taking the specimen for the toxicological examination और आप क्या करते हो, फॉर्मेलिन में डाल के ले जाते हो। फॉर्मेलिन क्या करेगी, टिश्यूज को फिक्स कर देगी, यू कैन नॉट हैव एनी एक्सट्रैक्शन फ्रॉम दैट, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका स्पेसिमेन है वहाँ पर बट इट इज नॉट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन फॉर द टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, तो वो अनअवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हिस्टोलॉजिकल में भी इसी तरह से फेलियर हो जाएगा, प्रॉपर मटेरियल इज नॉट कलेक्टेड, प्रॉपर साइट नहीं ली हुई, ठीक है। इन दैट कंडीशन प्रिजर्व ठीक नहीं किया, डिकम्पोजिशन होगी। फॉर एग्जाम्पल हमें कितना प्रिजर्वेटिव लेना चाहिए जब हम बॉटल में डालते हैं कोई भी स्पेसिमेन, शाबाश, इट शुड ऑलवेज कवर द स्पेसिमेन, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो पुट्रिफाइड होना शुरू हो जाएगा और वी शुड अवॉइड दैट बिकॉज प्रिजर्वेटिव का जो एम है वो यही होता है, ऑब्जेक्टिव यही होता है। This is also the same work के lack of, अगर हमने ठीक से टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन नहीं किया तो इवन इन दैट केसेस पैक नहीं ठीक किया, डिस्पैच ठीक नहीं किया, जो आई टोल्ड यू अनअवेलेबल स्पेसिमेन, it doesn't mean that specimen is not there, specimen is there but it is for no use of the person who is performing that collection, performing that examination. So unavailable specimen doesn't mean that specimen is available, it is not available for that examination, ठीक है। तो ये स्मॉल सा 2-1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता होता है, व्हाट इज मेंट बाय अनअवेलेबल स्पेसिमेन, वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द ट्रेस एविडेंस चैप्टर। If you like my video, please subscribe to my channel and press the bell button to receive all the notifications. And my channel name is Dr. Javed Iqbal Kokar, Lectures on Forensic Medicine. If you like my video, please subscribe to my channel and press the bell button to receive all the notifications. And my channel name is Dr. Javed Iqbal Kokar, Lectures on Forensic Medicine.